جوپیٹر اپنے مختلف رنگوں کے بادلوں، گریٹ ریڈ اسپاٹ اور بے پناہ سائز کے لیے جانا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جوپیٹر کی ڈسکوری، فارمیشن اور اس کے پلانٹ ڈسٹروئر سے لے کر یہاں موجود سولر سسٹم کے سب سے زیادہ طاقتور طوفان تک کے بارے میں چند حیران کن باتیں جانیں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جوپیٹر ہمارے سولر سسٹم کا سب سے بڑا پلانٹ ہے۔ جوپیٹر ہماری زمین سے تقریباً 318 گنا زیادہ بڑا ہے۔ در حقیقت یہ سولر سسٹم کے تمام پلانٹس کے مقابلے میں بھی 2.5 گنا بڑا ہے۔ جوپیٹر کے بارے میں تاریخ میں سب سے پہلا ذکر قدیم بابل کے باشندوں سے ملتا ہے، جنہوں نے 7ویں یا 8ویں صدی قبل مسیح کے آس پاس اس کا ریکارڈ درج کیا تھا۔ سولر سسٹم کے دوسرے پلانٹ کی طرح جوپیٹر بھی تقریباً 4.5 بلین سال پہلے وجود میں آیا تھا، جب گریوٹی نے گیس اور دھول کو ایک ساتھ کھینچ کر اسے گیس جائنٹ بنا دیا تھا۔ اس سیارے نے اپنا زیادہ تر وجود سورج کی تشکیل کے بعد بچ جانے والے ماس سے لیا تھا اور نظام شمسی میں موجود دیگر اجسام کے مشترکہ مٹیریل سے 2 گنا زیادہ بڑا بن گیا تھا، جبکہ تقریباً 4 بلین سال پہلے جوپیٹر سورج سے 5ویں سیارے کے طور پر اپنی موجودہ پوزیشن پر آیا تھا۔ جوپیٹر نے شاید قدیم نظام شمسی کے دوسرے سیاروں کو تباہ کر دیا ہے۔ سائنٹسٹ اسے گرینڈ ٹیک ہائپوتھیسس کہتے ہیں۔ یہ تھیوری کسی دوسرے گلیکسی کے سولر سسٹم کی آبزرویشن پر بیس کرتی ہے۔ اس مفروضے کے مطابق بہت پہلے ہمارے نظام شمسی میں ہماری زمین سے کئی گنا بڑے روکی پلانٹس یا سپر ارتھس موجود تھی۔ یہ پلانٹ پھر جوپیٹر اور سورج کی گریوٹی کے باعث ٹوٹ گئے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان قدیم پلانٹس کا ملبہ اکٹھا ہو کر آج کے چھوٹے پلانٹس بن گئے تھے۔ جوپیٹر نظام شمسی میں سب سے لارجسٹ نان اسٹارم کا مقام ہے، جسے گریٹ ریڈ اسپاٹ کہا جاتا ہے۔ جوپیٹر کا یہ گریٹ ریڈ اسپاٹ اس کے سب سے زیادہ فیمس کریچر میں سے ایک ہے۔ یہ اینٹی سائیکلونک طوفان جوپیٹر کے جنوبی ایکویٹر میں واقع ہے۔ اس طوفان کا ڈائیمیٹر 24,000 کلومیٹر اور اونچائی 12 سے 14,000 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ سائنٹسٹ کا اندازہ ہے کہ طوفان کی آؤٹر لیئر 680 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے حرکت کرتی ہے۔ اس کے برعکس زمین پر اب تک کا سب سے طاقتور طوفان صرف 305 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے پہنچا ہے۔ یہ اتنا بڑا ہے کہ زمین کے سائز کے 2 یا 3 پلانٹس اپنے اندر سما سکتا ہے، اور یہ اسپاٹ کم از کم 350 سالوں سے موجود ہے، کیونکہ اسے پہلی دفعہ دیکھنے کی تاریخ 17ویں صدی تک جاتی ہے۔ اس طرح یہ تاریخ میں ریکارڈ کیے جانے والا اب تک کا سب سے زیادہ عرصے تک جاری رہنے والا طوفان بھی ہے۔ اسے 1665 میں پہلی بار دیکھا گیا تھا، جبکہ 20ویں صدی میں پہلی بار ماہرین فلکیات نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یہ اسپاٹ ایک طوفان تھا جو جوپیٹر کے فاسٹ موونگ ایٹماسفیئر سے پیدا ہوا تھا۔ ان نظریات کی تصدیق وویگر 1 مشن سے بھی ہو گئی تھی، جس نے 1979 میں پلانٹ کے فلائی بائی کے دوران اس جائنٹ ریڈ اسپاٹ کو کافی قریب سے دیکھا تھا۔ تاہم اس وقت سے یہ کافی شرنک کر گیا ہے۔ کیسینی کی آبزرویشن سے پتہ چلتا ہے کہ 17ویں صدی میں یہ طوفان 40,000 کلومیٹر تک پھیلا ہوا تھا، جو کہ اب کے مقابلے میں تقریباً 2 گنا تھا۔ یہ طوفان اینٹی کلاک وائز گھومتا ہے اور اسے مکمل طور پر گھومنے میں 6 زمینی دن لگتے ہیں۔ تاہم یہ اب بھی ایک مسٹری ہے کہ یہ اسٹرومی ریجن آخر سرخ کیوں ہے۔ ماہرین فلکیات یہ نہیں جانتے کہ کیا یہ کبھی مکمل طور پر غائب ہو جائے گا یا نہیں، لیکن انہیں اس بات کا یقین ہے کہ کبھی کہیں اور بھی اس سیارے کی سطح پر ایسا طوفان بن سکتا ہے۔ جوپیٹر سورج سے اوسطاً 78 کروڑ کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو زمین سے سورج تک کے فاصلے سے تقریباً 5.2 گنا زیادہ بنتا ہے، جبکہ زمین اور جوپیٹر کے درمیان اوسطاً فاصلہ 71 کروڑ کلومیٹر ہے۔ یہ تو بات ہوگی اس کے ایوریج ڈسٹنس کی۔ اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جوپیٹر تک پہنچنے میں ہمیں کتنا وقت لگے گا۔ تو اگر آپ صرف ایک فلائی بائی کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تقریباً 550 سے 650 دن لگیں گے، یعنی 1.5 ایئرز، جیسا کہ وائیگر اسپیس کرافٹ نے لگائے تھے۔ وائیگر 1 نے صرف 546 دن لگائے تھے اور وائیگر 2 نے 666 دن۔ تاہم اگر آپ جوپیٹر کے اوربٹ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ کو پلانٹ تک پہنچنے پر بہت وقت لگے گا۔ مثال کے طور پر ناسا کے گیلیلیو اسپیس کرافٹ نے جوپیٹر پر پہنچنے میں 2242 دن یعنی 6.1 ایئر لگائے تھے۔
सूरज की रोशनी को ज़मीन तक पहुंचने में सिर्फ 8 मिनट 30 सेकंड लगते हैं, जबकि ये जुपिटर तक तकरीबन 43 मिनट 20 सेकंड में पहुंचती है। बहुत से लोगों का ख्याल था कि अगर जुपिटर मौजूद ना होता तो हम पर हर 2 साल में एक बार कॉमेट गिरता। तो क्या जुपिटर वाकई ही कॉमेट से हमारी ज़मीन की हिफाजत करता है? तो इस बात का सबूत 1994 से मिलता है, जब एक शूमेकर लेवी 9 नाम का कॉमेट जुपिटर से टकराया था। इसके बजाय अगर ये ज़मीन से टकराता तो ये तबाहकुन होता, जिसके नतीजे में सब बर-ए-आज़म का खात्मा हो जाता। अगर जुपिटर को देखा जाए तो इसका 1,42,000 डायोमीटर का इक्वेटर उभरता हुआ दिखाई देता है। ये उभरापन गालबन इसकी फास्ट रोटेशन और वैक्यूम टाइप पूल का नतीजा है। जुपिटर हमारी यूनिवर्स के बहुत से सियारों की तरह ही एक सियारा है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए बहुत अहम है, क्योंकि ये हमारे निज़ाम शमसी में दूसरे प्लैनेट्स के कॉमेट से हिफाजत के लिए वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जब आप रिंग सिस्टम के बारे में सोचते हैं तो आपके माइंड में फ़ौरन सैटर्न का नाम आएगा, लेकिन हकीकत में यूरेनस और जुपिटर में भी रिंग्स मौजूद हैं। जुपिटर के 4 रिंग्स हैं। सैटर्न के आइकॉनिक रिंग्स के बरक्स जुपिटर के रिंग्स बहुत मध्यम और बर्फ़ के बजाय मिट्टी के बने हैं। इन रिंग्स के बारे में समझा जाता है कि ये जुपिटर के मून पर मीटेरॉइड के टकराने के नतीजे में निकलने वाले मटेरियल से बने हैं। ये मटेरियल वापस अपने मून में जाने के बजाय जुपिटर की इंतहाई ताकतवर ग्रेविटेशनल फील्ड के बायस इसके ऑर्बिट में आ गया था। रिंग्स का ये निज़ाम तकरीबन 92,000 किलोमीटर ऊपर जुपिटर के बादलों से शुरू होता है और 22,05,000 किलोमीटर से ज़्यादा तक फैला हुआ है। ये रिंग्स 2,000 से 12,000 किलोमीटर तक थिक हैं। जुपिटर का डे तमाम प्लैनेट में सबसे छोटा होता है। इसके बहुत बड़े साइज और मास के बायस आपका ख्याल होगा कि जुपिटर अपने एक्सिस के गिर्द बहुत स्लो रोटेट करता होगा। ताहम ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे फास्ट स्पिनिंग करने वाला प्लैनेट है। जुपिटर तकरीबन 35,000 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूमता है, जबकि इसके मुकाबले में हमारी ज़मीन सिर्फ 1610 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से घूमती है। जुपिटर ज़मीन से 22,000 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूमता है। इस तरह जुपिटर पर सोलर सिस्टम का सबसे शॉर्टेस्ट डे होता है, जो कि हमारे सिर्फ 10 घंटे के बराबर होता है। ताहम यहाँ साल काफ़ी लंबा होता है। जुपिटर का एक साल हमारे 11.8 ज़मीनी साल के बराबर होता है। जुपिटर का एटमॉस्फेयर सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट में सबसे ज़्यादा थिकस है। साइंटिस्ट का ख्याल है कि जुपिटर के एटमॉस्फेयर की गहराई 5,000 किलोमीटर है, जबकि इसके कंपैरिजन में ज़मीन का एटमॉस्फेयर इसकी सतह से तकरीबन 10,000 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगरचे जुपिटर का एटमॉस्फेयर काफ़ी डेंस है, ताहम साइंटिस्ट का अंदाज़ा है कि जुपिटर पर बादल सिर्फ 50 किलोमीटर गहराई तक फैले हुए हैं। ये बादल बुनियादी तौर पर अमोनिया और अमोनियम हाइड्रोसल्फेट पर मुश्तमिल है। साइंसदानों का यह भी मानना है कि अमोनिया के नीचे पानी के बादलों की एक पतली सी तह भी है। इसलिए यह समझा जाता है कि पानी के ये बादल जुपिटर पर तूफान पैदा करते हैं और इनके तूफान बनाने का प्रोसेस ज़मीन पर तूफान बनाने वाले प्रोसेस की तरह का ही होता है। अगरचे इन तूफान की फॉर्मेशन एक जैसी है, लेकिन यहाँ के तूफान की नौयत ज़मीन पर आने वाले तूफान से काफ़ी शदीद होती है, जैसे कि आप इसके एक फेमस तूफान ग्रेट रेड स्पॉट के बारे में जान ही चुके हैं। जबकि जुपिटर के तूफान का सिंगल लाइटनिंग बोल्ट ज़मीन पर गिरने वाले आसमानी बिजली से 1000 गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है और इंसान इस प्लेनेट पर चल नहीं सकते। इसकी वजह यह है कि ये एक गैस जाइंट है और ज़्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके थिक एटमॉस्फेयर और बादलों की वजह से साइंसदानों को यकीन नहीं है कि जुपिटर का सरफेस है या नहीं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि जुपिटर के बादल तकरीबन 50 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इनके नीचे हाइड्रोजन और हीलियम की 21,000 किलोमीटर मोटी तह है, जो गहराई और प्रेशर में इजाफा के बायस गैस से लिक्विड में तब्दील हो जाती है। इस लिक्विड हाइड्रोजन की तह के नीचे लिक्विड मेटालिक हाइड्रोजन का 40,000 किलोमीटर गहरा समंदर है, जबकि इस समंदर के नीचे शायद सॉलिड कोर हो सकती है। यहाँ दर्जा हरारत तकरीबन 30,000 सेल्सियस होगा और ऊपर की फ़ज़ा के वज़न की वजह से यहाँ प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होगा। ताहम ये हीट रिसीव करने से कहीं ज़्यादा हीट खारिज करता है, जिससे ये लगता है कि इसमें सॉलिड कोर मौजूद है। लिहाजा अगर ये ठोस सतह है तो फिर भी ये बिल्कुल ऐसी नहीं है जो आपको किसी रॉकी प्लेनेट पर मिलेगी, और ऐसी तो बिल्कुल नहीं है कि जिस पर आप चल सके। इस प्लेनेट पर इंतहाई प्रेशर और दर्जा हरारत की वजह से कोई स्पेसक्राफ्ट यहाँ लैंड या फ्लाई नहीं कर सकता। माहिरीन फल्कियात जुपिटर को एक फेल्ड स्टार कहते हैं।
यानी ये हमारे सूरज की तरह स्टार बनते बनते रह गया था। लेकिन ये बात काफ़ी हद तक सही नहीं है। अगरचे ये सच है कि किसी स्टार की तरह जुपिटर भी हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, ताहम जुपिटर का मास इतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने मरकज़ में फ्यूजन रिएक्शन का अमल कर सके। दरअसल फ्यूजन रिएक्शन एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से स्टार एनर्जी जनरेट करते हैं। इस अमल में हाइड्रोजन एटम को इंतहाई हीट और प्रेशर से जलाने से हीलियम बनाई जाती है, जो कि रोशनी और हरारत पैदा करती हैं। ये सब इन स्टार की ज़बरदस्त ग्रेविटी की वजह से मुमकिन होता है। जबकि जुपिटर अगर अपने करंट मास से तकरीबन 70 गुना बड़ा होता तो तब ही ये अमल स्टार्ट करके स्टार बन सकता था। ज़मीन की तरह जुपिटर में भी नॉर्थर्न लाइट्स मौजूद हैं। ज़मीन पर ये लाइट्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड की सोलर रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन से पैदा होती हैं। सूरज के पार्टिकल्स हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से पोल्स की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, जहां वो एटमॉस्फेयर में मौजूद केमिकल्स के साथ इंटरेक्शन से नॉर्थर्न लाइट्स पैदा करते हैं। जबकि जुपिटर पे एक अलग कहानी है। इंटरेस्टिंगली जुपिटर अपनी नॉर्थर्न लाइट्स खुद बनाता है। सूरज से काफ़ी फासले पर होने के बायस यहाँ सोलर रेडिएशन काफ़ी वीक है, लेकिन फिर भी जुपिटर पर अरोरा मौजूद है। हैरत अंगेज तौर पर दरअसल जुपिटर की मकनातीसी मैदान की ताकत अरोरा पैदा करती है। जुपिटर की रेडिएशन खुद ही इसके मैग्नेटिक फील्ड में फंस जाती है और इसकी फ़ज़ा में मौजूद केमिकल के साथ इंटरेक्शन करती है, जिससे यहाँ नॉर्थर्न लाइट्स पैदा होती हैं। जुपिटर में निज़ाम शमसी में किसी भी दूसरे सियारे के मुकाबले में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड है। दर हकीकत जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग है कि अगर हम उसे अपनी आंखों से देख सकते तो ये हमारे आसमान की रोशन तरीन चीज़ों में से एक होती। ये मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर के अंदरूनी हिस्से में मौजूद लिक्विड हाइड्रोजन के वसी समंदर से पैदा हुई है और इसकी ताकत ज़मीन के मकनातीसी मैदान से 20,000 गुना ज़्यादा है। जुपिटर पर ग्रेविटी ज़मीन की ग्रेविटी से ज़्यादा है क्योंकि जुपिटर ज़्यादा बड़ा है। अगरचे जुपिटर ज़मीन से साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन इसकी सतह की ग्रेविटी ज़मीन की सतह की ग्रेविटी से सिर्फ 2.4 गुना ज़्यादा है। इसकी वजह यह है कि जुपिटर ज़्यादातर गैसों से बना है। अगरचे आपका वज़न ज़मीन पर 100 किलोग्राम है तो जुपिटर पर आपका वज़न 240 किलोग्राम होगा। 1973 में नासा का पॉयनियर 10 इस प्लेनेट को विजिट करने वाला पहला स्पेसक्राफ्ट था। तब से अब तक 9 खलाई जहाज जुपिटर पर भेजे जा चुके हैं। ज़मीन से काफ़ी फासले पर होने के बावजूद मार्स के बाद जुपिटर दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सप्लोर किए जाने वाला सियारा है।